So my screen visible? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So today we'll focus on maximization problems. Okay. So we have already understood in the previous classes that for graphical method we can solve only up to 2 decision variables, right? So when there are more than 2 decision variables, then we cannot use graphical method. Instead, we will use the simplex method. Okay, so simplex method is basically a iteration method that at each step we will check whether this particular solution is the optimum one or not. If it is not, then we will improve our solution. So this is an iteration based process, and it was developed by George Dantzig in 1946, and it is a systematic way of determining the optimum value of the objective function. So there are steps that we have to follow. So first step is formulation, that we have already understood, right? That how we have to formulate it. First we have to identify the decision variables, then we have to identify the objective function, then constraints and non-negativity restrictions. But while solving through simplex method, we have to ensure that all the variables are non-negative. That we already have done so in our graphical method, that we put x1, x2 greater than or equals to 0. The second most important condition is that all the values on the right hand side of the constraints are non-negative. It means whatever your equations are, after the sign, whether it is equals to, less than or greater than equals to, the right hand side value should be positive. If it is not positive, then you have to make it positive. How? You will multiply the entire equation with -1, right? You all know math, so you just have to convert it. Otherwise you cannot solve this equation with the simplex method, and I'll tell you in later in the class that why there is why we have to convert it, because this is very important. Otherwise you cannot solve your simplex problem. Okay, so two important conditions while formulating. First is all your decision variables should be greater than equals to 0, and the right hand side value of your equation should also be positive. Okay, so this step is step 1. Then you have to augment the linear programming problem by मैम एक बारी introducing. मैम मैम फर्स्ट स्टेप एक बारी दिखा दो. Yes, I'll share my PPT. I'm just saying that these are the two conditions that have to be satisfied. This condition we were already taking care of, right? That x1 and x2 is greater than or equals to 0. This, the second condition, is very important for simplex problems. LPP we can still solve with negative side on the right hand, negative value on the right hand side, but we cannot solve the equations in simplex problem. So that is why we have to make sure that the right hand side value of the equation is positive. Clear? Okay ma'am, मैम पढ़ लिया. Yes ma'am. Okay. The next one is the augmentation, that we have to augment the LPP. So after step 1, what is step 2? That you have to introduce certain variables to make your equation equals to type. ठीक है, initially when we are formulating it, we are formulating it less than equals to or greater than equals to types, right? Now in augmentation, we will make all our equations as equal to type. So how will we do it? So all the variables, that is equations, in which there is less than or equals to constraint. So जिस भी equation में less than equals to sign है, what we'll do, we will add slack variable. Slack variable is basically the difference when the equation is less than equals to type. तो इससे क्या शो होता है कि राइट हैंड साइड वैल्यू कम है राइट हैंड साइड वैल्यू से, राइट? तभी लेस देन इक्वल्स टू साइन है. तो स्लैक वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में ऐड कर देते हैं.
जिससे हम इक्वेशन को बोलते हैं कि जो भी बीच में बैलेंस था ना, जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कम पड़ रहा था, उतना हमने अपना स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, जिससे अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, इक्वल्स टू टाइप। ठीक है, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अनयूज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन थी, सॉरी आपका कॉन्स्ट्रेंट था दैट यू हैव अ लिमिटेड 100 आवर्स ऑफ मशीन। ठीक है, 100 आवर्स ऑफ मशीन वाज द लिमिटेशन। सो आपने इक्वेशन बनाई कि हम इतना x1 x1 इतना आवर्स लेगा मशीन के, x2 इतना लेगा आवर्स मशीन के, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, 100 आवर्स, मशीन 100 आवर्स की थी। अब अगर सपोज हम कम यूज कर रहे हैं, लेस देन हमारी कोई वैल्यू है, तो वो डिफरेंस जो स्लैक वेरिएबल है वो उसी कॉन्स्ट्रेंट का अनयूज्ड रिसोर्स बताता है कि लेस देन इक्वल्स टू टाइप है। सो इन केस लेस है, सो इसका मतलब इतना मशीन आर वो यूज नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया है। अगर पूरा यूज होता है, पूरे 100 आवर्स यूज होते हैं, तो आपका स्लैक वेरिएबल डेफिनेटली 0 होगा, राइट? बट अभी हमने सॉल्व नहीं किया है अपना एलपीपी, we are just converting the less than equals to equations into equals to equation by adding slack variable, and this basically represents the unused resource। जो भी constraint होगा उसकी unused resource को slack variable represent करेगा, and it is actually contributing nothing to the objective। ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन क्या होता है आपका, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, दैट x1 is giving 2 rupees of profit per unit, x3 is giving 3 rupees per unit। सो इस केस में स्लैक वेरिएबल तो अनयूज्ड रिसोर्स है, तो ये कोई ऑब्जेक्टिव में थोड़ी हेल्प कर रहा है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 0 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो यू हैव टू असाइन 0 कोफिशिएंट टू द स्लैक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो दिस इज अबाउट स्लैक वेरिएबल्स। The next comes about the surplus variable. Okay, so surplus variable means all the equations which are greater than or equals to type. It means now your left hand side is greater than the right hand side. Okay, so when left hand side is greater, what we will do, we will subtract the surplus variable. In this case we have added the slack variable, in this case we have to subtract it because left hand side is greater. So I am subtracting whatever the surplus is there from the left hand side in order to make it equal to the right hand side. ठीक है, so इस केस में आपका surplus variable subtract होगा, और ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कहता है जो आपका constraint था उसको आप excess में यूज कर रहे हो, surplus है बेसिकली। So you are using your constraint whatever, क्योंकि जब हम equations बनाते हैं तो this is always in terms of sub constraints, right? So जो भी उसके corresponding होगा, इसका मतलब वो उस corresponding resource को excessively use कर रहा है, इसलिए ये एक surplus variable है, इसको हम subtract करेंगे। And same as slack variables, they are not contributing anything to the objective function, so we are assigning 0 coefficient. Is this clear about slack and surplus variable? In this step 2 we are basically augmenting our linear programming problems. ठीक है, सारी लेस देन और ग्रेटर देन को हम इक्वल्स टू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स। इज दिस क्लियर? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट वन? Please ask Yes, me any ma'am. doubts you have, because this is important. Once this all steps are clear, then the simplex you can believe that 90% of the simplex problems are solved if all the steps are clear. The next step is artificial variable. Okay, so surplus done, slack done. What is artificial variable? Artificial variable is added to greater than equals to and equals to constraints to convert into an equation. So basically, what is the purpose of artificial variable? When we already know in greater than equals to type that our left hand side value is higher, right? We know it. That is why we have subtracted the surplus variable, right? But in simplex problem, we cannot solve our tables with a negative कोफिशिएंट। अब इसमें सरप्लस वेरिएबल का नेगेटिव वैल्यू सामने नेगेटिव पड़ रहा है ना, -1 नेगेटिव कोफिशिएंट आ रहा है उसका। सो नेगेटिव कोफिशिएंट से वी कैन नॉट सॉल्व द सिंप्लेक्स प्रॉब्लम, इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं सरप्लस के साथ। सो जहां पे भी सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होगा वहीं पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो जाएगा।
इसका रीजन बस यही है कि हम लोग सिंप्लेक्स में अगर हमारा सरप्लस, जो भी हमारा स्लैक तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो कोई इश्यू नहीं होता, सरप्लस वेरिएबल सिंस उसका कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इस वजह से हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के बेसिस पे भी सॉल्व आवर इक्वेशंस। ठीक है, अभी हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद आपको मैं दोबारा रिविजिट कराऊंगी कंसेप्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सरप्लस के साथ हमने आर्टिफिशियल भी क्यों ऐड किया, राइट। सो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल सिर्फ सिंप्लेक्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाते, और ये बिल्कुल फिक्टिशियस होता है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। जैसे स्लैक एंड सरप्लस हम बोलते हैं दीज आर द रिसोर्सेज, राइट, जो भी आपका कॉन्स्ट्रेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, आइदर इट इज अनयूज्ड और इट इज ओवरयूज्ड। बट जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, इट इज entirely fictitious, it does not have any meaning, its introduction is only to solve your simplex problems. That is why it is also added to the equals to constraint. When the equation is already in the equals to type, then also we have to introduce artificial variable. Augmentation में हर इक्वेशन में आपको इन 3 वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। सो इक्वल्स टू में हम आर्टिफिशियल करते हैं, लेस देन में स्लैक वेरिएबल करते हैं, ग्रेटर देन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सरप्लस बट वी ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। और इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, सिंस वी नो दैट फॉर स्लैक एंड सरप्लस वी आर एडिंग 0 कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, but for artificial variables we will be adding -m in case of maximization problem and positive m in case of minimization problem. This m is a very big m. Big M means whenever you have to think about the m, you will think it of as a very very big number. ठीक है, इसका भी रीजन है, इसका रीजन यही है m कोफिशिएंट का, कि सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को जब हम सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स प्रॉब्लम, तो हम हमेशा सॉल्व करते हैं इन वेरिएबल से। जैसे हमारा स्लैक होता है तो हम सबसे पहले स्लैक वेरिएबल्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हमारा सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो हम लोग इसको बिग एम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम ये हमें अपने फर्स्ट आइटरेशन में ही इन सब वेरिएबल्स को हमारे सिंप्लेक्स से रिमूव करा देना है। ठीक है, हमें इन्हें बाहर निकालना है। सो मैं आपको बताऊंगी, आइटरेशन प्रोसेस है ना, तो हर टेबल में कुछ नया आएगा वेरिएबल और कुछ पुराना जाएगा। ठीक है, सो इस केस में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को बिग कोएफिशिएंट्स इसलिए दिए गए हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी फर्स्ट या सेकंड टेबल में ही ये बाहर हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन कि हम इनको, क्योंकि अब हम 0 नहीं दे सकते, दे डज नॉट हैव एनी मीनिंग, राइट। सो हम इनको नेगेटिव m और प्लस m कोएफिशिएंट्स देते हैं और हम इनको ये बोलते हैं कि दीज आर द बिग m, ओके, दीज आर द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट्स। सो हम अभी वी आर फोकसिंग ओनली ऑन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, सो वी विल स्टिक टू -m इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो आपका स्लैक वेरिएबल कैसे होते हैं, s1 s2 s3, सिमिलरली सरप्लस भी s1 s2 s3, बस कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल विल बी a1 a2 a3। ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट। सो वील just see this particular example. So this is your initial formulated LPP. ठीक है, you have to maximize your objective function. This was the equation and these were the constraints, and both the constraints are less than or equals to type. This is usually the case of maximization problems, right? All your equations becomes less than or equals to type. Now you know that left hand side is less as compared to right hand side. Now you have to introduce the slack variables. Okay, so you are introducing slack variable 1 in this equation, that is you are making this as x1 plus 2x2 plus s1. Now it is equals to 300 because we are augmenting the LPPs. For the next one, since s1 is introduced here, in this second equation we will introduce s2, slack variable 2. So 3x1 plus 2x2 plus s2 is equals to 480. The next step is non-negativity restriction, that x1, x2, s1 and s2 all are greater than or equals to 0. Okay, so after this is done, this is your step 2. अब suppose यहाँ पे equations होती आपके greater than or equals to type. ठीक है, so greater than equals to type होती तो आप surplus variable को subtract करते, so ये हो जाती minus s1 और artificial variable को add करते plus a1.
सिमिलरली यहाँ पे हो जाता -S2 प्लस A2. ठीक है, so this is how you have to augment it. So you don't have to practice much. I'll try to solve as many questions as possible in the class, so you will have a fair understanding about when to introduce one. Is this clear, or you have any doubts till this point? Augmentation समझ में आ गया है? Excuse मैम वो ma'am. लेस देन वाले, मैम वो ग्रेटर देन वाले केस में कैसे करेंगे? जैसे ग्रेटर देन वाले केस में होगा ना, सो यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होगा. यहाँ पे लिखा है ना इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल्स, सो इसकी जगह आ जाएगा इंट्रोड्यूसिंग द सरप्लस वेरिएबल्स S1 S2 and artificial variables A1 A2 to convert the greater than equals to constraints into equation. तो आपको जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप्स होती हैं उसमें यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सरप्लस एंड यू हैव टू ऐड आर्टिफिशियल. अभी डोंट वरी, अभी होगी आपका प्रॉपर लेक्चर जिसमें वो इक्वेशंस भी होंगी जो हम सॉल्व करेंगे. अभी सिर्फ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सीख लो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैक वेरिएबल्स. ठीक है, एक बारी स्लो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू द सरप्लस, क्योंकि सरप्लस में आर्टिफिशियल आते हैं, आर्टिफिशियल के साथ एम आता है, सो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है. ऑल द स्टेप्स विल बी सेम, इट्स जस्ट दैट it looks like little bit complicated, although it is not. So we'll deal that particular situation later on. Abhi we'll just understand the basic model with the help of slack variables. Okay, so after that the step 3 is to obtain an initial feasible solution. So initial feasible solution, before moving to that I just want to explain you about the basic variables. ठीक है, so basic variables are the variables for which we will solve our equations in first table. जो भी simplex table का first जो table बनेगा उसमें जो basic variables होंगे वो variables होंगे जिसकी value हम solve करेंगे with your simplex method. So वो usually क्या होते हैं आपके either slack variables or your artificial variables. ठीक है, हमेशा इसी से शुरू होता है. सो अब मेरी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन, सो डेफिनेटली वो स्लैक वेरिएबल से शुरू होगा. ठीक है, सो मेरा जो स्टेप थर्ड है वो ये कहता है कि अपार्ट फ्रॉम योर नॉन स्लैक वेरिएबल्स, ओके, पुट ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स इक्वल्स टू 0. या फिर अगर आपकी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अभी बस इमेजिन कर लेना, ऑल्दो मैं दोबारा डिस्कस करूंगी, जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप नॉन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को छोड़कर सारी वैल्यूज को इक्वल्स टू 0 पुट करते हो. उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है और आपके मैक्सिमाइजेशन में आपका स्लैक वेरिएबल होता है. तो स्लैक वेरिएबल को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज हैं आपके, चाहे डिसीजन वेरिएबल्स हैं चाहे आपके सरप्लस वेरिएबल्स हैं, आपको वो इक्वल्स टू 0 पुट करने हैं. ठीक है, सो मेरी ये इक्वेशन थी. ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि एक बार ऑगमेंट हो जाती है ना उसके बाद हम यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं. ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया हमारा, यहां पे आ गए. अब ये देखो, मैं नॉन स्लैक वेरिएबल्स को 0 पुट कर रही हूँ. सो दिस इज 0, दिस इज 0, इट मींस S1 इज इक्वल्स टू 300. दिस इज 0, दिस इज 0, इट मींस S2 इज इक्वल्स टू 480. ओके, एंड दिस इज आल्सो टर्म्ड एज BI. ओके, BI इज सेड as the right hand side value of the equation. Okay, so ये हमारी B, इसमें नीचे ये नेक्स्ट स्लाइड जाओगे ना, ये जो BN है ना, ये यही डिनोट कर रहा है कि अगर आप अपने सारे नॉन स्लैक वेरिएबल्स को, जैसे आपका X1 X2 X3 सो ऑन, या फिर आपके सरप्लस वेरिएबल S1 S2 S3 सो ऑन, सबको 0 पुट कर दोगे, सो आपके फिर स्लैक वेरिएबल्स की क्या वैल्यू आएगी. ठीक है, अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, अभी ये वाला नीचे वाला छोड़ दो. ठीक है, नीचे वाला हम करेंगे, अभी हम सिर्फ इस वाले पे फोकस कर रहे हैं. तो S1 विल बिकम B1, दैट इज S1 विल बिकम द राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 1, S2 विल बिकम द राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 2. ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने BI वैल्यूज निकाल ली. ठीक है, अभी सिर्फ आप ऐसे कर रहे हो, जब आप मेन क्वेश्चन करोगे ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, डायरेक्ट आपको बस वैल्यूज उठा के लिखनी. ठीक है, सो दिस इज स्टेप 3, that these now slack variables are basic variables.
ठीक है, और बेसिक वेरिएबल्स की राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द इक्वेशंस इज योर b1 b2 एंड सो ऑन. Now next is step 4, that you have to construct the initial simplex W or you can say table. ठीक है, so this is your initial table. अभी कोई अल्टरेशन नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है. जो आपकी ऑगमेंटेड इक्वेशंस थी उसका आप एक टेबल बना रहे हो. ठीक है, फर्स्ट टेबल. सो फर्स्ट टेबल होता है आपका इस फॉर्मेट में. आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में आपका टेबल बनाना है. सो जो फर्स्ट कॉलम अभी ये छोड़ दो, बेसिक वेरिएबल, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द इनिशियल टेबल में जो बेसिक वेरिएबल होंगे वो या तो आपके स्लैक वेरिएबल्स होंगे या फिर वो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होंगे. सो इन दिस particular format, S1, S2, S3, these are your slack variables. So these will be the basic variable. And basic variables क्या होती है? The variables whose value is obtained by solving an LPP. So ये आपके basic variables है अभी. So हम start करते हैं slack variables से. उसके बाद next है आपके coefficient matrix. ये क्या होती है? ये आपके variables हैं x1, x2, x3. Suppose there were 3 equations. सो उस इक्वेशन में इक्वेशन वाइज उनके क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे आप लिख देते हो. सो दिस इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. सो दिस स्लैक वेरिएबल्स वाली इसको कहते हैं बेसिक मैट्रिक्स. ओके, सो ये हमेशा आपकी आइडेंटिटी फॉर्म में होती है क्योंकि यूजुअली स्लैक वेरिएबल 1 फर्स्ट इक्वेशन में इंट्रोड्यूस होता है. सो उसमें ना S2 होता है ना S3 होता है. सेकेंड इक्वेशन में S2 इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें S1 नहीं होता, S3 नहीं होता. और थर्ड इक्वेशन में S1 S2 नहीं होते, थर्ड S3 इंट्रोड्यूस होता है इसलिए 1. सो ये हमेशा आपकी आइडेंटिटी फॉर्म में ही होती है. नेक्स्ट दिस CJ इज सेम, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है. ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके कोफिशिएंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं. सो x1 का कोफिशिएंट क्या है, x2 का क्या है, x3 का क्या है. S1, S2, S3 वी नो कि स्लैक वेरिएबल्स के 0 कोफिशिएंट्स होते हैं तो 0 है. इसलिए हमने यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स अभी S1, S2, 3 लिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके वैल्यू 0 डाली हुई है क्योंकि वी नो दैट देयर कोफिशिएंट इज 0 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ये दोनों CJ सेम, ये कोफिशिएंट्स बताते हैं. This we know, these are the right hand side values of the constraint. तभी थर्ड स्टेप में ही हम S1 को इक्वल्स टू कर देते हैं by putting non slack variables as 0. कि S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आएगा, S2 के ये आएगा, S3 के ये आएगा. ये सारी आपकी राइट हैंड साइड वैल्यूज है. उसके बाद ZJ, this is basically the summation of the product of the column with the respective solution. So this is basically 0 into B1 plus 0 into B2 plus 0 into B3. For this particular cell, it will be 0 into A11, 0 into A21, 0 into A31. For this one, it will be 0 into A12 plus 0 into A22 plus 0 into A32. So for the first table, it will always be 0. क्योंकि हमारे जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं उनका कोफिशिएंट हमेशा 0 रहता है. सो ये 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रहेगा. तो फर्स्ट टेबल यूजुअली ZJ हमारा 0 ही रहता है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा रो CJ minus ZJ. So that you know, this is your CJ, this is your ZJ. You can simply subtract. So C1 minus 0, C1, C2 minus 0, C2, C3 minus 0, C3, 0, 0, 0. ठीक है, so this is your initial table. So जब भी augmented equations बन जाएंगे आपको सबसे पहले ये टेबल बनाना है. ठीक है, ये टेबल जब बन जाएगा उसके बाद हमें सीखना है कि हमें उसको कैसे और इम्प्रूव करना है. ठीक है, so let's first do the table and then we'll see. ठीक है, so CJ minus ZJ is the net evaluation row basically which represents whether any kind of improvement is possible or not. ठीक है, so ये हमें बताता है कि अभी और इम्प्रोवाइज करना है या यहीं पे रुक जाना है. क्योंकि हमारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के रूल कहता है कि मैक्सिमाइजेशन में अगर ये सारी वैल्यू 0 या 0 से कम हो जाती हैं इसका मतलब हम अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं, हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है. So let's just construct this table in this particular. ये हमारा टेबल है, 2 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल x1 x2, 2 स्लैक वेरिएबल्स है s1 s2. ठीक है, सो हमारा टेबल ऐसा बना है.
Okay, so first of all, I'll put the coefficients of the decision variable in the coefficients which are there for these decision variables in the objective function. So x1 का क्या है 40, x2 का क्या है 50, s1 0, s2 0. So इसके लिए हमेशा आपको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है. ठीक है, सो x1 का 40, x2 का 50 और इनका 0 0. सिमिलरली cj, बेसिक वेरिएबल वी नो स्लैक से शुरू होता है, सो इट इज 0 एंड 0. इतना हमारा डन है. नेक्स्ट सॉल्यूशन bi, सो दीज आर द राइट हैंड साइड वैल्यू, सो दिस विल बी 300, दिस विल बी 480. ओके, नेक्स्ट आती है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या कहते हैं, इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं. सो x1 का 1 है, x2 का 2 है, s1 का 1 है, s2 है ही नहीं तो 0. ठीक है, सिमिलरली x1 का 3, x2 2, s1 है ही नहीं तो 0 और ये हो गया हमारा 1. ठीक है, सो दिस इज माय इनिशियल टेबल व्हिच आई हैव फॉर्म्ड. ओके, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट zj व्हिच इज द summation of the product of cj with the respective elements of the column. So for this it will be 0 0 0 0 0. हमेशा इनिशियल टेबल में यूजुअली 0 होता है, बट अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हुए तो यहाँ पे m आ जाएगा, तो फिर ये m के फॉर्मेट में होगा. ठीक है, cj माइनस zj ऑल्सो वी नो 40 माइनस 0 40, 50 माइनस 0 50, 0 0. मैम ये ZJ आपने 0 कैसे लिखे सारे? बेटा ये एक तो cj कॉलम जो होता है ना, ये तो सेम रहता है. उसके बाद जिस सेल के नीचे आप वैल्यू ले रहे हो उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उस कॉलम के. सो अगर मैं इसको देख रही हूँ तो मैं इसके एलिमेंट्स देखूंगी और मैं मल्टीप्लाई हमेशा cj के रिस्पेक्टिव से करूंगी. सो इट विल बी 0 इंटू 300 प्लस 0 इंटू 480. सो जब भी जिसको मल्टीप्लाई करोगे, अब ये दोनों ही 0 है, तो 0 को जब भी जिससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 0 ही आएगा. सिमिलरली इस कॉलम में भी, इस कॉलम में भी. सो इस वजह से ये सब 0 आता है. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट टेबल आ गया. ठीक है, कि हमें सबसे पहले ये बनाना है. अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है इसके साथ, ये ऑप्टिमम है या ये ऑप्टिमम नहीं है. सो इसका एक रूल होता है जो कि स्टेप 5 होता है, विच एक्चुअली टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी. सो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमें देखना होता है कि अगर हमारी cj माइनस zj rows are less than or equals to 0, we say that the solution is optimal. But if it is not, then we have to improve it. So in our example, they are not 0. There is 40 and 50. ये दोनों 0 है, but ये नहीं है. So इसका मतलब हम अभी अपने optimum level पे नहीं है. अब improvise करना है. So improvise कैसे करते हैं? अभी जो ये चीज है ना, this just leave for the time being. Okay, ये बस थोड़ा ये बता रहा है कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन मल्टीपल ऑप्टिमल है, यूनिक नहीं है. सो दिस वी विल सॉल्व लेटर ऑन. अभी बस हमें ये डिसाइड करना है कि ऑप्टिमम है या नहीं है. सो नहीं है, अब हमें इंप्रूव करना है. सो इंप्रूव कैसे करना होता है, स्टेप 6 बताता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इनकमिंग वेरिएबल. इसका मतलब अब कौन सा वेरिएबल हमारा बेसिक वेरिएबल बनेगा. ठीक है, वो कैसे सिलेक्ट करोगे? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कहती है कि आपको cj माइनस zj वाली रो में वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है विच इज द मैक्सिमम. मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना, तो हमें वो सिलेक्ट करना है जो सबसे लार्जेस्ट है, बिकॉज जितनी लार्जेस्ट वैल्यू हम पहले डालेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली उसका कोफिशिएंट लार्जेस्ट है, तो वो डेफिनेटली ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट में. सो मैक्सिमाइजेशन में हम cj माइनस zj रो की मैक्सिमम वैल्यू, डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं. सो उससे हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा इनकमिंग वेरिएबल कौन सा आ रहा है. इनकमिंग वेरिएबल से हमें हमारा की कॉलम पता चल जाता है. अभी सुनते रहो, अभी देखोगे जब क्लियर हो जाएगा. सो उससे हमारा की कॉलम आइडेंटिफाई हो जाता है. फिर हमारा ये क्लियर हो जाता है, ओके दैट दिस इज द इनकमिंग वेरिएबल, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द आउटगोइंग वेरिएबल. इट मींस इस टेबल में से अब किस वेरिएबल को हमें आउट करना है. सो अभी हमारे इनिशियली स्लैक वेरिएबल 1 एंड 2 है टेबल में. अब मुझे इन दोनों में से एक को आउट करना पड़ेगा, तभी मेरा न्यू इनकमिंग वेरिएबल आएगा. ठीक है, इट कुड बी आइदर x1 और इट कुड बी x2. सो उनमें से कोई आ रहा है और s1 s2 में से कोई जा रहा है. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे जो मेरा बी आई रो के एलिमेंट्स हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा की कॉलम की रिस्पेक्टिव वैल्यूज से। ठीक है, सो मेरा की कॉलम मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा है कि जो भी मेरा मैक्सिमम होगा ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम होगा मेरा, और उसकी वैल्यूज को मैंने बी आई की वैल्यूज को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके मैंने क्या निकाली है, रेशियोज। ठीक है, सो आपने जो फर्स्ट कॉल ये देखा होगा यहाँ पे रेशियोज है ना, ये रेशियोज मैं कैलकुलेट करूंगी, और इन रेशियोज में से मैं लीस्ट पॉजिटिव वाली को सिलेक्ट करके उसको एलिमिनेट कर दूंगी कि इसका कंट्रीब्यूशन कम है, इसको निकाल दो यहां से। सो वो मेरा आउटगोइंग वेरिएबल बन जाएगा और वो मेरी बन जाएगी की रो, और जो उसका इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द की वैल्यू और पिवट वैल्यू। ठीक है, सो ये हम स्टेप करने के बाद हम अपने की एलिमेंट को निकाल लेंगे जो इंटरसेक्शन है। उसके बाद अब हम अपने सॉल्यूशन को इम्प्रोवाइज करेंगे। सो ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर आपकी सारी रिप्लेसमेंट रेशियोज नेगेटिव आती है तो हम ये बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। यू ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ अनबाउंडेड। ठीक है, कि हमारा जैसे ग्राफिकल में बना था कि पूरा एरिया कोई है ही नहीं उसका बाउंडेशन, सो वो अनबाउंडेड होता है। तो सिमिलरली सिंप्लेक्स में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब आपकी रेशियो सारी नेगेटिव होगी। तो अब स्टेप 1 पे जाओ अपने, जहां पे फॉर्मुलेशन के टाइम पे ये लिखा हुआ है कि राइट हैंड साइड वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड वैल्यू क्या होती है आपकी बी आई वैल्यू, और अगर बी आई वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली रेशियोज तो नेगेटिव ही आएंगी, क्योंकि आपने उन्हें पॉजिटिव नहीं किया। तो वो नेगेटिव आएंगे तो आप तो ये बोल दोगे कि द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, बट एक्चुअली में नॉट। आपको फर्स्ट स्टेप पे ही राइट हैंड साइड वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, जिससे आपकी किसी भी हालत में जो रेशियोज हैं वो सारी की सारी नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि हमें लीस्ट पॉजिटिव रेशियो को सिलेक्ट करना है in order to identify the incoming variable, sorry the outgoing variable, sorry. ठीक है, and the last one is we have already discussed about the key element, that is intersection of the columns and rows will be the key element, and how we have to improvise our solution. So this step I'll just come again. So first we will do the identifications. Okay, so this is our initial table, right? जो हमारा फर्स्ट टेबल था वो ये टेबल था। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है अपना इनकमिंग वेरिएबल। तो इनकमिंग वेरिएबल का क्या रूल कहता है, सीजे माइनस जेड जे रो से मैक्सिमम वैल्यू चूज करो। सो अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपकी 50, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट मींस दिस इज माय इनकमिंग वेरिएबल। सो नाउ x2 इज कमिंग। ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया दिस इज माय की कॉलम। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम के आगे था। अब मेरा नेक्स्ट काम आता है कि अब मुझे निकालना है आउटगोइंग वेरिएबल की S1 जाएगा या S2 जाएगा। उसके लिए मुझे करनी है रेशियोज कैलकुलेट। रेशियोज कैसे कैलकुलेट होती है, बी आई को डिवाइड कर दो की कॉलम के एलिमेंट से। सो 300 डिवाइड बाई 2, 480 डिवाइड बाई 2। सो 300 डिवाइड बाई 2 विल बी 150, 480 डिवाइड बाई 2 विल बी 240। मैंने अपनी रेशियोज निकाली। ठीक है, पहले इनकमिंग किया, उसके बाद रेशियोज निकाली। अब रेशियोज क्या कहती हैं, लीस्ट पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करो। सो लीस्ट पॉजिटिव इज माय 150, सो इट मींस 150 इज जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो है, दिस इज की रो, एंड नाउ S1 इज गोइंग आउट। ठीक है, X2 इज कमिंग इन, S1 is going out, and this 2 is basically my key element. This is the intersection of the key row with the key column. ठीक है, ये 3 स्टेप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, ये बन गया, ये आइडेंटिफाई हो गए। अब आप अपना फर्स्ट आइटरेशन टेबल बनाओगे। ठीक है, जो फर्स्ट आइटरेशन टेबल होगा उसमें अब क्या होगा, मेरा जो S1 था, S1 की जगह मेरा X2 आ गया। देखो इस पुराने वाले में S1 था और मुझे पता है X2 आ रहा है, सो X2 यहां आ जाएगा और S1 गया। ठीक है, सो मेरा X2 यहां पे आ गया, और ये जो 50 था, आई नो दैट द ऑब्जेक्ट जो कोफिशिएंट है X2 का इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज 50। सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आके 50 लिख दिया, क्योंकि कोफिशिएंट नहीं चेंज होने वाला, कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेगा। जो आपकी ये बोलता ही यही है कि सीजे का मतलब है
कि उस पर्टिकुलर बेसिक वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कोफिशिएंट है। सो अब मेरा S1 जाके X2 आ गया और X2 का मुझे पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि उसका 50 है, तो मैंने 50 लिख दिया। नाउ ये सारी वैल्यूज फिर से कैलकुलेट होंगी अंदर की, ठीक है जी। जो पुराना टेबल की वैल्यूज थी, अब ये वैल्यूज नहीं रहेंगी, नई वैल्यूज आएंगी। सो नई वैल्यूज कैसे आनी है, जो भी आपका की रो होगी वो बहुत इजी है, सारी वैल्यूज को की एलिमेंट से डिवाइड कर देना, ठीक है। सो मुझे पता है ये मेरी की रो है 300 1 2 1 0 एंड की एलिमेंट इज 2, सो यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी नंबर विद 2, ठीक है। हमने तीनों स्टेप कर लिए, हमने आइडेंटिफाई किया। अब आइडेंटिफाई के बाद अब बनेगा नया टेबल, अब पुराना टेबल नहीं है, ठीक है। सो जब बुक्स में बनाओगे अपने नोटबुक्स में, सो अब एक नया टेबल बनाना है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन फिर से डाल देनी है। सीजे ऊपर सॉल्यूशन बेसिक वेरिएबल, ये पूरा टेबल दोबारा बना देना। और ये जो अंदर की वैल्यूज है ना, ये सारी चेंज हो जाएंगी अब, ठीक है। अब ये सेम नहीं रहेंगी पुराने वाली। और चेंज कैसे होंगी, जो की रो होगा उसको, पूरी की रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देना। सो इट विल बी 300/2, 1/2, 2/2, 1/2 and 0/2. So these are basically your new values. 150, 0.5, 1 and 0. Now these are your new values. क्योंकि आप solution improvise कर रहे हो, सारी values change होंगी. For the other values, you have to follow one formula. And what is the formula? Now I am coming back. Okay. So after location, you have to improvise it. So first of all is about the base row that we have already discussed. जो भी आपकी की रो होगी, आप उसको एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड कर दोगे, एलिमेंट इन द की रो बाय द की एलिमेंट। फॉर द अदर वेरिएबल्स यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला। ओल्ड वैल्यू मतलब जो आपके मेन टेबल की वैल्यू थी वो, माइनस corresponding key row value into corresponding key column value divided by key element. This is the formula that you have to use in order to calculate your new values. And after this is done, then you have to repeat the process 5 and 6 again. Okay, so I'll just show you. So this is done. For this, now I have to check what was my initial value. So initial value was 480. So 480. Okay, so 480 minus now corresponding key row value. What is the corresponding key row value? It is 300, right? So this is 300 multiply by corresponding key column value. So in this case, what is the key column value? It is 2. Corresponding ये है ना 2, multiply by 2, then divide by 2. क्योंकि divide by 2 मतलब जो की एलिमेंट है उससे डिवाइड करना है, तो हमारा की एलिमेंट हमें पता है, it is 2. So 480 minus 300 into 2/2 will be 180. So this is your new value. This is 180. 2 से 2 कट गया है. So this is 180. For the next value, x1. What is my initial one? 3. So I'll write as it is 3 minus now corresponding key row value. So this is 1 now. So 1 multiply by corresponding key column value. So corresponding key column value is again 2. Divide by key element. So key element I know this is 2. So this is basically 2. So these are my new values. 2. Again for x2, my initial value, old value is 2. So I'll write 2 minus corresponding key row value. So corresponding key row value is 2. Multiply by corresponding key column value. So I know it is there in the key column only. So this is the key value. 2 divide by key element. I know it is 2. So this is 2 minus 2. It is basically 0. Similarly, you will calculate all the values for S1 as well as S2. So this is how you have to calculate all these values. Is this clear? Is this step clear? That for the base row, जिसमें भी new variable आया उसको तो सारी values को उसके key element से divide कर दो, और उसके अलावा जितनी भी values है उनके लिए ये formula use कर दो.
ठीक है, अब यहाँ पे खाली 2 रो थी, हो सकता है 3 रो भी वाले भी क्वेश्चंस आए। जब 3 रो वाले आ जाएंगे तो हमें 2 रो की वैल्यूज इनसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि की रो तो एक ही होगी ना आपकी, उसको तो आप सिंपली 2 से डिवाइड कर दोगे, उसके अलावा सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी। इज दिस क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। Please ask me, otherwise I'll move forward. बेटा कुछ बोलोगे? हाँ ना कुछ बोलोगे? यस मैम, थोड़ा थोड़ा आ यस गया। मैम थोड़ा क्लियर। थोड़ा आ जाए बस, क्योंकि उसके बाद फिर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से आता रहेगा। अभी एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलते रहो, ठीक है? अब हमारी वैल्यूज आ गई, अब फिर से हमें ZJ निकालना है, ठीक है? सो ZJ इज मैम 1। यस, अगर 2 वैल्यूज सेम सेम हो, मतलब मैक्सिमम निकालना है ना हमें, तो you can use anyone. If there is a tie, sorry I forgot to tell you, if there is a tie you can select anyone, you will get the same answer. काफी बार क्या होता है, टाई होता है ना, तो आपने एक यूज किया तो काफी बार क्या होता है 2 आइटरेशन में ही सॉल्व हो जाएगा, और सपोज गलती से आपने दूसरे वाला सेम ले लिया तो 4 आइटरेशन में सॉल्व हो जाएगा। चाहे कितनी भी आइटरेशन लगे, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। टाई में सिर्फ आइटरेशन बढ़ जाते हैं, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है, जो हमें नहीं पता होता इनिशियली, बट आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। मैम तो जो हमने ये मैक्सिमम अमाउंट सिलेक्ट किया था 50, मैम उसका बेसिक पर्पस तो यही है ना, मतलब की एलिमेंट को सिलेक्ट करना, जैसे 50 से 2 आया था। नहीं नहीं बेटा, हमारा उसका पर्पस ये नहीं आइडेंटिफाई करना कि की एलिमेंट क्या है। मैक्सिमम 50 का मतलब ये है कि कौन सा वेरिएबल अब इनकमिंग है हमारे, क्योंकि जो एंड में सॉल्यूशन होता है ना, वो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल होता है और उसका क्या सॉल्यूशन है, ये होता है आंसर। हमारा उसका मैम तो पर्पस जो होता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनकमिंग वेरिएबल है और कौन सा अब आउटगोइंग है। मैम तो जो वहाँ पे हमने की एलिमेंट 2 सिलेक्ट किया था, वो कैसे किया था, एक बार दोबारा वो बता तो दो। इंटरसेक्शन था बेटा, दैट वाज द इंटरसेक्शन, कि की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन था वो। तो हमने CJ माइनस ZJ से मैक्सिमम आइडेंटिफाई करके ये देखा कि ये मेरा अब इनकमिंग वेरिएबल है, और रेशियोज कैलकुलेट करके मुझे ये पता चला ये मेरा आउटगोइंग वेरिएबल है। मतलब अब ये आ रहा है और ये अब जा रहा है टेबल से। और 2 जो की एलिमेंट होता है ये फॉर्मूले में यूज होता है, इसलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इसका इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि फॉर्मूले में भी यूज होता है और जो आपकी बेस रो होती है वो पूरी की पूरी डिवाइड होती है की एलिमेंट से। इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। और मैम आउटगोइंग वेरिएबल वाली रो वो होगी जिसमें लेसर रेशो होगी, मतलब 150 है जैसे। हाँ, लीस्ट पॉजिटिव, ओके मैम। मतलब नेगेटिव नहीं लेनी वैल्यू, हमेशा लीस्ट पॉजिटिव लेनी है। एंड मैम हमने वो जो CJ में 50 लिखा था S1 का कोएफिशिएंट, हाँ, मैम वो अपने S1 का नहीं, X2 का, हाँ मैम क्योंकि वो हमने X2 का X2, इसलिए लिखा है ना क्योंकि X2 इनकमिंग है। हाँ क्योंकि अब एक्चुअल में ये जो कोफिशिएंट होता है ये बेसिक वेरिएबल्स का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, कि जो बेसिक वेरिएबल्स है उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कोफिशिएंट है। तो पहले S1 था इसलिए 0 था, अब X2 है तो X2 का कोफिशिएंट 50 है, इसलिए यहाँ पे 50 आ गया। ओके मैम। ठीक है, सो दिस इज डन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ZJ अगेन। सो दिस इज अगेन इसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड कॉलम। सो इसमें क्या होगा 50 इंटू 150, तो मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 150 विल बी 750, क्योंकि 0 से मैं मल्टीप्लाई नहीं करा रही क्योंकि 0 मुझे पता है प्लस में सब में 0 ही आएगा। सो मैं यहाँ पे कुछ इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि 0 इंटू 0 एनी नंबर इज 0। Similarly, 50 into 0.5 is 25, right? 50 into मैम वो 0.5 70 नहीं plus, 7500 नहीं होगा? हाँ sorry 7500, right? 7500, sorry my mistake.
ठीक है, इस वाले का इट विल बी 15 to 0.5 plus 0 into 2, 0. So it will be 25. Then 15 to 1 plus 0 into 0. So it will be 50. Again 50 into 0.5 plus 0 into minus 1. So it will be 25. And 50 into 0 plus 0 into 1 is 0. So it was 0. So हमने फिर से अपने ZJ कैलकुलेट कर लिए. अब हमें पता है नेक्स्ट है CJ माइनस ZJ. So 40 minus 25, 15. 50 minus 50, 0. 0 minus 25, minus 25. And 0 minus 0 is 0. अब मैंने अपना दोबारा CJ माइनस ZJ निकाला. अब मुझे टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी लगाना है. क्या मेरे CJ माइनस ZJ रो में सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल्स टू 0 है? अब इस केस में नहीं है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव 15 है. इसका मतलब अब मेरा आइटरेशन 2 टेबल बनेगा. ठीक है, सो आइटरेशन 2 जो टेबल बनेगा मेरा, वो कैसे बनेगा? अब मेरे को आइडेंटिफाई तो हो गया है दैट दिस इज माय इनकमिंग वेरिएबल बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो नाउ x1 is coming into the table. Now again I have to identify what is out there. ठीक है, सो अभी ये आइटरेशन 2 है, हमारा 50 आइडेंटिफाई हो गया. अब 15 आइडेंटिफाई होने के बाद कि मेरा x1 आ रहा है, मेरा की कॉलम आइडेंटिफाई हो गया. नाउ आई विल अगेन डिवाइड माय b एलिमेंट विद द रिस्पेक्टिव x1 एलिमेंट. सो 150 डिवाइड बाय 0.5, so this is 300. 180 divided by 2 is 90. Now out of these two values, this is the least positive value, that is 90. Okay, so this is least positive value. So this is my key row and this particular element S2 is now going out from the table. ठीक है, अब फिर से मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया and this 2 basically is my key element because this is the intersection one. ठीक है, ये intersection पे है, so this is my key element. After this is done, again I have to do what? I have to recalculate all my values. So now in place of S2, x1 will come and instead of 0 it will be 40 because 40 is the coefficient of x1. And for this entire key row I will divide each and every element with 2. So 180 divided by 2, 2 by 2, 0 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2. And for these values I have to again use the formula. So इन वैल्यूज को फिर से फॉर्मूला के थ्रू आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. सो इसकी वैल्यू ऐसे आएगी. सो दिस इज अ होमवर्क, यू कैन प्रैक्टिस कि इस वैल्यू से हमने दोबारा नई वैल्यूज निकाली है, तो अब मेरी जो वैल्यूज आएंगी अंदर की वो ये वाली होंगी सारी वैल्यूज. सॉरी, दीज वैल्यूज एज वेल. ये सारी वैल्यूज मेरी फिर से कैलकुलेट हो रही है. जैसी मेरी फिर से वैल्यूज आ गई, अगेन आई हैव टू कैलकुलेट ZJ. So 15 to 105 plus 14 to 90, 8,850. 15 to 0 plus 14 to 1, so 40. 15 to 1 plus 14 to 0, 50. Again 15 to 3 by 4 plus 14 to minus 1 by 2, 17.5. 15 to minus 1 by 4 plus 14 to 1 by 2, 7.5. So CJ minus ZJ will be 40 minus 40, 0. 50 minus 50, 0. 0 minus 17.5 is minus 17.5. 0 minus 7.5 is minus 7.5. Again, now you have to check the test for optimality. Are the values less than or equals to 0? Yes, the values are 0. It means we have got our optimum values. So x1 की value should be 90, x2 की value should be 105, and my maximization objective value is 8,850. So this is your answer. This is how you have to interpret your answer. That my x1 is 90 units, x2 is 105 units, my objective value is this. After putting these values, this is the maximum objective value, that is 8,850. अगर ये यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता तो फिर से आइटरेशन होता. सो जब तक ऑप्टिमम वैल्यूज नहीं आ जाती तब तक हमारा आइटरेशन प्रोसेस चलता रहता है. इज दिस क्लियर? द एंटायर प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस. इसके अलावा प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे मैक्सिमाइजेशन हो चाहे मिनिमाइजेशन हो. द प्रोसेस विल बी एग्जैक्टली सिमिलर दैट वी हैव डन.
Any doubts to anyone?